guys, welcome to this video. आज इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ क्लास में केमिस्ट्री चैप्टर 5 केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या है? स्टडी it deals with the study of heat charges, energy transformation, and the feasibility of chemical reactions. It helps us to understand why reactions occur and how energy reaction between the system and the surroundings. So physics में भी ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका हूँ क्लास 11। सो मैंने फिजिक्स में भी ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर जो जो कि चैप्टर 11 में है। सो वो वाला भी एक बार वीडियो देखना तो को आइडिया मिल जाएगा। Definition: thermodynamics is a branch of science that relates to the study of relationship between heat, work and energy. Applications क्या है? Heat involved in combustion, energy changes in reactions, industrial chemical process, fuel efficiency. 1 मार्क के लिए अगर क्वेश्चन पूछेगा ये डेफिनेशन लिख के आना। अगर पूछेगा डिफाइन थर्मोडायनेमिक्स तो ये डेफिनेशन लिख के आना, तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। अगर एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछा है तो ये लिख के आना, एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये जो है ये चारों पॉइंट। अगर पूछेगा क्वेश्चन में डिफाइन थर्मोडायनेमिक्स, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा डिफाइन थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टेटिस एप्लीकेशंस, अगर नहीं तो अगर ऐसे भी पूछेगा कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट इज एप्लीकेशंस, तो ये सब लिख के आना। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स: system, the part of the universe under study. Types of systems क्या है? Open system exercises both matter and energy. Example: boiling water in an open vessel. Closed system क्या है? Exercises only energy. Matter cannot enter or leave. Example: water in a sealed bottle. Isolated system exercises matter not energy. Example: thermos flask. Approximately. B. Surroundings: everything outside the system. C. Universe. Universe equal to system plus surroundings. D. Boundary: separates the system from surroundings. State of a system क्या है? A से system is defined by temperature, pressure, volume, composition. These are called state variables. Types of properties: intrinsic properties, independent amount of sources. Example: temperature, pressure, density. Extrinsic properties depend on amount of sources. Example: mass, volume, internal energy. State functions depend only on initial and final states. Examples: internal energy, enthalpy, entropy, gives energy. Part functions depend on part depend on the part followed. Examples: heat, work. Internal energy, total energy possessed by a system. Includes kinetic energy of molecules, potential energy, chemical energy. Internal energy cannot be measured directly. हीट क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। वो फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ा था, ये साइन कन्वेंशन। तो आपको साइन कन्वेंशन अच्छे से आपको रिमेम्बर होना चाहिए। वर्क, एनर्जी ट्रांसफर व्हेन फोर्स मूव्स एंड ऑफसेट। एक्सपेंशन वर्क व्हेन गैस एक्सपेंस W इक्वल टू माइनस डेल्टा P माइनस डेल्टा V। W इक्वल टू P माइनस डेल्टा V। W इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, where P equal to pressure, delta V equal to change in volume। फिजिक्स में भी आपको फॉर्मूला पता है इसका फॉर्मूला। साइन कन्वेंशन में क्या है? साइन कन्वेंशन क्या बोलता है? एक्सपेंशन W इक्वल टू नेगेटिव, कंप्रेशन W इक्वल टू पॉजिटिव। एक्सपेंशन में क्या होता है? W इक्वल टू नेगेटिव। कंप्रेशन में क्या होता है? W इक्वल टू पॉजिटिव। देखो यहाँ पे व्हेन गैस एक्सपेंस W इक्वल टू माइनस डेल्टा माइनस P डेल्टा V। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेटमेंट: एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी नाइटेड बनाया जाता है, नाइटेड उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। इट कैन ओनली बी converted from one form to another. Mathematical form: delta U equal to Q plus W, where delta U equal to change in internal energy, Q equal to heat, W equal to work. स्पेशल केसेस, तो स्पेशल केसेस के बारे में बात करेंगे। कांस्टेंट वॉल्यूम, वर्क जब नहीं होता है तो W इक्वल टू 0 होता है, देयरफॉर क्या होता है? डेल्टा U इक्वल टू QV। कैसे होता है मैं बताता हूँ। देखो डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, और अगर W 0 होता है तो W डेल्टा U इक्वल टू Q हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला आप देख सकते हो यहाँ पे। constant pressure, heat supplied is or enthalpy change. Delta H equal to QP. Enthalpy H divided as H equal to U plus PV. It represents heat content of a system. Enthalpy change. Delta H equal to H products minus H reactants. एंथैल्पी क्या होता है? H से डिनोट होता है। मैं आपको ऑलरेडी बताया थर्मोडायनेमिक्स में हीट क्या होता है? Q से डिनोट होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? हीट H से डिनोट होता है। तो यहाँ पे जो H से क्या डिनोट होता है? एंथैल्पी। यहाँ पे H वाला जो सिंबल है ये दूसरा चीज के को डिनोट किया जाता है, दूसरा चीज को डिनोट करता है एंथैल्पी। इंस्टेड ऑफ हीट, इट्स
जो डिनोट करता है वो एंथैल्पी को डिनोट करता है इंस्टेड ऑफ डिनोटिंग हीट, डिफाइंड एज H इक्वल टू U plus PV. It represents heat content of a system. U plus PV. So types of enthalpy change. Enthalpy of reaction. Heat change during a chemical reaction. Enthalpy of formation. When heat change when one mole of a compound is formed from its elements. Example क्या है? H2 plus half O2 gives H2O. Enthalpy of combustion. Heat released when one mole of substance burns completely. Always negative. ये हमेशा नेगेटिव है. Enthalpy of neutralization. Heat involved when acid reacts with base. Strong acid plus strong base. और इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी है, मेमोराइज करके जाओ. एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड. एंथैल्पी ऑफ वेरिएशन, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस. एंथैल्पी ऑफ sublimation, enthalpy of sublimation, heat required to convert solid directly into gas. Exothermic reactions, release heat, delta H less than zero. Examples: burning coal, combustion of LPG, respiration. Characteristics: temperature increases, products have low energy. रेस्पिरेशन में आपको याद है इनहेल एक्सेल जो करते हो आप जो इनहेल एक्सेल करते हो, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, तो उसे बोलता है रेस्पिरेशन. तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जांपल है. अगर आप ब्रीथ करते हो कार्बन डाइऑक्साइड आता है. और आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा चीज है जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है. कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लोबल वार्मिंग आता है, जिससे हीट बहुत बढ़ता है समर के टाइम में. एवरी ईयर एवरी ईयर तो आपने न्यूज में सुना है कि हीट बढ़ता जा रहा है. जैसे साल नया होता जा रहा है वैसे हीट बढ़ता जा रहा है, वैसे हीट न्यू होता जा रहा है. एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या है? एब्जॉर्ब हीट, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो. एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, मेल्टिंग आइस, इवापोरेशन. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? टेम्परेचर डिक्रीजेस, प्रोडक्ट्स ऑफ हायर एनर्जी. फोटोसिंथेसिस देखो, मेल्ट आइस जो मेल्ट होता है वो उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलता है. वो जो फ्रिज से जब जैसे ही आइस निकालते हो बाहर तो वो मेल्ट हो जाता है. आइसक्रीम याद है? आइसक्रीम आइसक्रीम जो खाने के लिए तो बहुत लोग पागल हो जाते हैं. लोग तो बहुत पागल होता है आइसक्रीम खाने के लिए. दुकान में जाता है, जब पार्टी करने लगता है आइसक्रीम खाता है. दुकान में जाके बोलता है भैया मुझे आइसक्रीम चाहिए, कितना पैसा देना है, कितना रुपीज देना मुझे. तो पैसा देके आइसक्रीम खाता है दोस्त के साथ. ऐसा तो होता है. तो अगर गर्मी का मौसम में जैसे मान लो इतना धूप है और फ्रिज अगर काम नहीं कर रहा है तो आइसक्रीम तो पिघल जाएगा. और अगर आइसक्रीम कोई खरीदने जाएगा तो पिघला हुआ आइसक्रीम उसको मिलेगा. फिर बोलेगा कि क्या भैया कैसा आइसक्रीम बेचते हो आप. तो चलो ऐसे तो होता है. तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस तो हो गया. थर्मोकेमिकल इक्वेशंस, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस शोइंग हीट एक्सचेंज. यहाँ पे देखो हीट एक्सचेंज जो है ना, ये देखो CO2 यहाँ पे इसका वैल्यू भी दिया हुआ है, याद रखना है आपको ये. His law of constant heat summation statement: the enthalpy change of a reaction is independent of the path followed. It depends only on the initial and final states. Applications: calculating unknown enthalpy changes, determining latest energy, finding bond energies. बॉन्ड एंथैल्पी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड्स इन गैसेस. यूनिट क्या है? ऐसे यूनिट इसका है कि किलो जूल पर मोल. बॉन्ड एंथैल्पी फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एच इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ ब्रोकन बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जीज ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन माइनस बॉन्ड एनर्जीज ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड. इसका समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ बॉन्ड ब्रोकन माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड. Lattice enthalpy, energy equal to separate one mole of ionic solid into gaseous energy. Higher lattice enthalpy, stronger ionic bond. Spontaneous process क्या है? Occurs naturally without external help. Examples क्या है? Rusting, melting above 0 degrees Celsius, ice melting above 0 degrees Celsius, flow of water downhill. जैसे दुकान में पिघला हुआ आइसक्रीम मिलेगा और पूछेगा, जैसे बोलेगा, जैसे भैया को बोलेगा कि भैया कैसा आइसक्रीम मिलती है. तो उसे बोलता है आइस मेल्टिंग अबव 0 डिग्री सेल्सियस. कोई भी थिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है. कोई भी अगर जीरो ऑब्जेक्ट अगर 0 डिग्री सेल्सियस है या 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे से है तो वो फ्रीज स्टेट में रहता है. एंट्रोपी क्या है? मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ डिसऑर्डर. हायर डिसऑर्डर, हायर एंट्रोपी. एंट्रोपी इंक्रीजेस, सॉलिड gives liquid, liquid gives gas, temperature increases. Gives free energy, zero measures molecularity of reactions. ये क्लास 4 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये क्लास 4 का केमिस्ट्री चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आप पढ़ने वाले हो. गिव्स फ्री एनर्जी, where delta G equal to gives free energy, temperature equal to T equal to temperature, estimated Kelvin.
डेल्टा एस इक्वल टू एंट्रोपी। कंडीशंस क्या है? डेल्टा जी लेस देन जीरो, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी इक्वल टू जीरो, सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। स्टैंडर्ड एंथैल्पी एच डेल्टा एच नॉट measure under standard conditions, pressure equal to 1 bar, temperature equal to 290 Kelvin, 25 डिग्री सेल्सियस, प्योर सब्सटेंस इज स्टैंडर्ड स्टेट। ये भी क्लास ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो। स्टैंडर्ड स्टेट मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सब्सटेंस एट 1 बार प्रेशर स्पेसिफाइड टेम्परेचर, ये भी क्लास ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो। सो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, ये वैसे फॉर्मूला मीनिंग भी दिया हुआ है यहाँ पे, इसको आज से इसको रिविजन देना है आपको। और प्रीवियस ये पीवाई क्यूज है, वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर, ये करना है आपको। तो फिर देखना आपको अगर ये आपको करना आ गया तो आपको कुछ ना कुछ आपको अटेम्प्ट करके आ पाओगे भाई पेपर में। रिडक्स, ये थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर में, थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर तो ये इजी है एज कम्पेयर टू केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड एज कम्पेयर टू क्लासिकल एलिमेंट्स एंड periodicity इन प्रॉपर्टीज। ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर एज कम्पेयर टू चैप्टर 3 और 4, ये चैप्टर 5 बहुत इजी है। ये आपको अगर आ गया तो आप कोई भी अगर 1 मार्क क्वेश्चन या 2 मार्क क्वेश्चन आएगा एटलीस्ट, तो आप वो से उसे अटेम्प्ट करके आ पाएंगे। सो आपको ये मिल गया ना, सो आपको ये जो मिल गया चैप्टर समरी, थर्मोडायनेमिक स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन हीट, वर्क, एनर्जी, ये सब ये समरी करना है आपको। अगर ये चैप्टर समरी जो ये क्विक रिकैप के लिए है, अगर आपने ये चैप्टर खत्म कर लिया तो आपको ये क्विक रिकैप करना है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। ठीक है, सो बाय।